बैठो, इस तो बाद फिर करना है। बैठो बैठो, इस तो बाद फिर करना। बैठो प्लीज प्लीज, बैठो करते हैं। बैठो 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 भाई साहब, इस तो बाद करते सर। अरविंद जी ने बोलन दो प्लीज। फिरोजपुर के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी व्यापारी, उद्योगपति भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, समय थोड़ा सा कम है। अगर आप लिख के दे देंगे एक एक चीज, एक बार बोल उनको दे दो। मैं हेलो सर, मैं भगवान बांसल, प्रेजिडेंट पंजाब कॉटन फैक्ट्री एंड जिनिंग एसोसीएशन, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਇਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਫੇਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 442 ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ 40 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2023 ਚ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ OTS ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, 2013 ਚ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ PIDF ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ 2024 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਫੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਲੱਕੀ ਠਕਰਾਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ट्रेड विंग फिरोजपुर। साढ़े आड़तियों से मोदी सरकार ये कहती है ये जो बिचौलिया है इसको बाहर फेंकना है। 270 साल का साडा कारोबार है आड़तियों का। पंजाब के विच किसानी ते आड़ती का 9 मास का रिश्ता है। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵਿਚੋਲੀਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਈਲੋ ਜਿਹੜੇ 31 ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 31 ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜਤੀ ਥਰੂ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਕੀ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आप में से बहुत लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कल रात को दिल्ली का कैंपेन खत्म करके, दिल्ली के चुनाव खत्म करके कल रात को अमृतसर में लैंड किया और आज मेरी सबसे पहली मीटिंग व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि हम व्यापारियों को और उद्योगपतियों को कितना महत्व देते हैं, हमारे लिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी भाई साहब ने ठीक बोला, मोदी जी आड़तियों को, व्यापारियों को बिचौलिया कहते हैं।
हम आपको बिचौलिया नहीं समझते, हम आपको पंजाब की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। अगर हमारे व्यापारी नहीं होंगे, अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे, तो हमारा देश 2 मिनट के लिए भी आगे नहीं चल सकता। जहां एक तरफ किसान और मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, दूसरी तरफ व्यापारी और उद्योगपति हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहली आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की मीटिंग पंजाब के अंदर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है और हम पंजाब के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। आज से 1 साल पहले मैं पंजाब आया था। मैंने और भगवंत मान साहब ने व्यापारियों के साथ कई सारी मिलनी की थी। हम दोनों अमृतसर गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, मोहाली गए और वहां पे हर शहर के व्यापारियों को और उद्योगपतियों के साथ बैठ के 3-3 घंटे तक हमने मीटिंग की थी। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए मुझे जाना है। 3-3 घंटे बैठ के मैंने खुद एक पॉइंट लिखा था, जो जो समस्याएं थी। मेरे जाने के बाद मान साहब ने पूरे पंजाब के अंदर होशियारपुर गए, वो दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां पे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठ के मिलनी करी और एक सभा के सारे पॉइंट, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को साथ लेके गए थे और सारे पॉइंट्स नोट किए। उनमें से कई चीजों पे काम शुरू हो गया, कईयों पे अभी काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। मान साहब ने पिछले 2 साल में देश भर में घूम घूम के खुद जा जाके इंडस्ट्री के मालिकों के साथ बातचीत करी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज 56,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर से पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। कोई एमओयू साइन नहीं हुए, फर्जी एमओयू नहीं है। उन्होंने जमीन खरीद ली, नारियल फोड़ दिया, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर कोई छोटी चीज नहीं होती। किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के, जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के अंदर लग रहा है। जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, कई सारे देशों के इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने जा रहे हैं। क्यों? जब भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है, वो सबसे पहले देखती है इनके यहां लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हमारी सरकार के पहले कितना खराब था लॉ एंड ऑर्डर, कितना खराब था। आज पंजाब के अंदर अमन शांति है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट है, काफी इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ 100% ठीक हो गया, और भी काफी कुछ करने की जरूरत है, करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इसका मतलब काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री आती है, देखती है हमारे जो मसले हैं सरकार से, उसमें कितना टाइम लगता है। अब सबको ये लगने लगा है कि कई सारे सरकारी कामकाज तेजी से होने लगे हैं। सरकार के साथ जो इंडस्ट्री का, व्यापार का, लाइसेंस लेने का, परमिशन लेने का, एनओसी लेने के जो काम है, वो अब काफी तेजी से होने लगे हैं। और भी कई करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे।
मेरा ये सारा बताने का 2 साल बहुत कम होते हैं जी। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है और धीरे 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 करके अब स्थिति इंप्रूव होने लगी है। आप लोगों के जितने मसले हैं, अभी कमल किशोर जी ने, शशि जी ने, यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने बिजली के बारे में बात की, इन्होंने संजीव जी ने, संदीप जी ने और कई लोगों ने बातचीत की। मैं सारे पॉइंट नोट कर रहा था।